Okay. So what were we discussing? We were on the chapter of chemical effect of current, and I'll just write points. Let me see whether we recollect them or not. So our chapter was chemical effects of current. Okay, chaliye. So we were discussing about chemical effects of current. And I'll just write some points. Let's see whether we remember them or not. Number one was we understood what is a conductor. All of you remember? Conductors are those solids which allow electricity to pass through them. This is just a revision. We have studied all these things. Rather than writing, you pay attention on the board, okay, and try to recollect. What were conductors? Conductors were the solid materials which allow electricity to pass through them. तो ऐसे ही हमने conductor सीखा था, तो हमने एक और चीज सीखा था. We had learnt about insulators. Insulators are the solids which do not allow electric current to pass through them. Conductors allow electric current to pass through them. Okay, and the electric current needs certain things called charge carriers, right? They need charge carriers, and in the case of solids, the charge carriers were electrons, were the charge carriers. And another thing that we studied in terms of solid was that no chemical change takes place. Means if through a wire electric current is passing, and if it passes for 20 years also, if the wire is made up of copper, it still retains to be of copper. You don't expect the material to change. That was all our discussion in terms of solids when electric current flow through it. Okay? So this was what we had learned, and what I'll do is that I take this portion off now and I come to our chapter, which is all about liquids. Okay. Now, liquids which conduct electricity, remember, which conduct electricity, they are known as electrolytes. Very good, electrolytes. And which do not conduct, are known as non-electrolytes. Very good. Which do not conduct are known as non-electrolytes. And these electrolytes which conduct, they can be further classified as strong electrolytes which conduct electricity very nicely, and weak electrolytes which do not conduct electricity that nicely. Okay? Now, in the case of liquids, if you are an electrolyte, then in you the charge carriers are of two types. Yes, very good. आप पढ़ के आया है आज. Charge carriers are known as ions, and these ions can also be of two types. They can be positive or they can be negative. If they are positive, we call them cations. Okay. If they are negative, they are known as anions. And one of the way to remember them, as I told you, that Cn यहाँ नहीं, वो इलेक्ट्रोड में, यहाँ cations के प्लस को इस तरह से लिखिएगा. ठीक है? That was the thing. Now, in liquids, the electrolytes which allow current to pass through them also undergo chemical change. They undergo chemical change. And what is a chemical change? A chemical change is an irreversible change. Usually a chemical reaction, ये हम class 7 में भी पढ़ चुके हैं, which cannot be reversed. इसमें new substances with new properties will be formed, right? Now, further going on this, how do you understand whether something is a weak electrolyte or a strong electrolyte? We had a test conducted, and in this test we understood that if you use a torch bulb, right, and you also had the option of using an LED. A torch bulb, if it glows in a circuit which is made to run through the electrolyte, if the torch bulb glows, then the liquid is an electrolyte. And if the torch bulb does not glow, the liquid is a non-electrolyte. But what if the current is very small and the torch bulb is not sufficient for the torch bulb to glow? In that case, remove the torch bulb and bring an LED. LED is a better device because it can sense large current को तो sense कर ही सकता है, small current को भी sense कर लेगा. Or else you can also bring a magnetic compass nearby. Okay. Another option was, we had also discussed about a magnetic compass. So if that current, that conductor which is actually passed through the electrolyte is conducting electricity, that means if the electrolyte is conducting electricity, then the magnetic compass will show a deflection. And if the magnetic compass does not show a deflection, we get to understand that it is no more conducting electricity. So this was also understood, right? After this we studied something called
how to have the electrolyte to pass electricity, we need to have a setup in which we understood what is known as a electrolytic tank. Do you remember? The electrolytic tank is usually like an aquarium tank which is made up of glass, right? So you should have an electrolytic tank, number one. Then number two, what did we see? We should have a electrolyte. And what are the common examples of electrolyte? Acid, bases, salt solution. Solution, water should be there. Concentrated acid is not an electrolyte. So you should have an electrolyte. You should also have something called an electrode. So what are electrode? Electrodes are the conductors which are dipped, which carry the current from the external circuit to the electrolyte. And these electrodes can be then named as cathode and anode. यहाँ पे यूज करेंगे एक बार Cartoon Network and Andhra Pradesh, okay? Or else you use the word called don't panic. Positive is anode, negative is cathode. Positive is anode, negative is cathode. So we will have the electrolytic setup, and the electrolytic setup will have what? An electrolytic tank, an electrolyte, electrodes, and external power supply that is given to this. Samajh mein aaya? So what was this chapter all about? We further said at the start that electric current shows three types of effects: heating effect, magnetic effect, chemical effect. Heating effect is always studied in physics, magnetic effect in physics, chemical effect is studied in chemistry, because here a chemical reaction takes place. That means new substances with new properties are formed. So if agar aapko koi puche what are the chemical effects of electric current, the various chemical reactions that take place when electricity is made to pass through an electrolyte, and they bring about changes. Changes किसमें लाएगा? The changes can be seen in the electrode or the electrolyte also. तो यहाँ से आज की कहानी हमारी शुरू होती है, ठीक है? So we have been talking so much by now. I think ये story तो clear हो गया कि there will be some chemical effect. There will be some chemical effect. और ये chemical effect कब होगा? ये chemical effect तब होता है when electricity is passed. Electricity is passed through क्या बेटा? Electrolyte. अब हम इलेक्ट्रोलाइट ही बोलेंगे, अब हम लिक्विड नहीं बोलेंगे, क्योंकि लिक्विड तो कंडक्ट भी कर सकता है, नहीं भी कंडक्ट कर सकता है, पर अगर हम इलेक्ट्रोलाइट बोले दैट मींस इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी. सो सम केमिकल इफेक्ट टेक्स प्लेस. एंड नाउ क्वेश्चन अराइजेस, सर यू हैव बीन टॉकिंग अ लॉट अबाउट दीस केमिकल इफेक्ट्स. व्हाट आर दीस केमिकल इफेक्ट्स? सो फर्स्ट आई सेड these chemical effects are nothing but various chemical reactions that take place, and these chemical reactions are going to bring about what, children? Certain chemical changes. मतलब substance change हो जाएगा, certain chemical changes. And what are chemical changes? Chemical changes means we are going to get new substances. ऐसे mind map से याद रखिए, new substances and we're going to have new properties. मतलब पूरा नया चीज बन जाएगा, नया चीज होगा. और ये नया चीज हमें कहाँ दिखेगा? This chemical change you will see is either in the electrolyte, मतलब इलेक्ट्रोलाइट खुद ही बदल गया, या फिर इलेक्ट्रोड्स में कुछ बदलाव आ जाएगा. ये बच्चों समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. Okay, in a nutshell, what did I say? That if you try to bring chemical, if you try to pass electricity through an electrolyte, you're gonna expect chemical reactions. These chemical reactions are known as chemical effect. ऐसे रिएक्शन से क्या होता है? ऐसे रिएक्शन से कुछ केमिकल चेंजेस, रासायनिक बदलाव होते हैं. व्हाट आर दिस केमिकल चेंजेस? नए सब्सटेंस बनेंगे नए प्रॉपर्टीज के साथ. ये कौन बनते हैं? दैट इलेक्ट्रोलाइट माइट अंडरगो अ चेंज, or the electrode, or both of them may also undergo a change. Have you understood? Because glass tank तो react नहीं करता है. So the funda is something like this. See, we had a glass tank. In this glass tank we had electrolyte. इलेक्ट्रोलाइट में क्या डुबोया हुआ था? इलेक्ट्रोड्स डुबोए हुए थे, और इन इलेक्ट्रोड्स को हमने सप्लाई दे दिया था, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. जो नेगेटिव है वो कैथोड, जो पॉजिटिव है वो एनोड. ठीक है ना? कौन सा नेगेटिव कैथोड रहेगा? कार्टून नेटवर्क. इसमें हमेशा आयंस में रहता है बेटा, हमेशा याद रखिए. तो अभी आपको चेंज कहां कहां दिखेगा? या तो इलेक्ट्रोलाइट में केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, या फिर इलेक्ट्रोड में केमिकल रिएक्शन होगा. ये याद रखिए. ग्लास टैंक में कोई रिएक्शन नहीं होगा. फाइन, अंडरस्टूड. नाउ
Do you know the process? What is chemical effect of current? The various changes or the chemical reactions that happen as a result of electricity being passed through electrolyte, and the changes are seen usually in the electrodes or in the electrolyte. Such changes, chemical changes, are known as the chemical effect. ये chemical, ये बदलाव, ये striking difference है from the wires in our house. हमारे घर के wires solid हैं, उनसे इलेक्ट्रिसिटी सालों साल चल रहा है, उनमें कोई चेंज नहीं होता है. जैसे लिक्विड से अगर पास कर देंगे तो इसलिए इसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं. ठीक है, आइए कुछ और बेसिक सीखते हैं. सो द प्रोसेस, ओके. अब जो केमिकल इफेक्ट है, इन केमिकल इफेक्ट्स में एक टाइप ऑफ इफेक्ट होता है जिसे हम कहते हैं, वी कॉल इट एज इलेक्ट्रोलिसिस. ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस. इस वर्ड का मीनिंग समझते हैं. लिसिस, डू यू नो पैरालिसिस? पैरालिसिस सुना है? किसी का जब एक ऑर्गन बॉडी से कट हो जाता है, बिकॉज द ऑर्गन इज नो मोर फंक्शनिंग along with the body, then इसको हम कहते हैं पैरालिसिस. लिसिस मींस स्प्लिटिंग. सो स्प्लिटिंग ऑफ समथिंग विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस. ठीक है ना. इलेक्ट्रोलिसिस से क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस इज नथिंग बट नोन एज इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन. अच्छा, डिकम्पोजिशन मतलब क्या है? यू विल हैव अ सब्सटेंस, हमारे पास एक सब्सटेंस होगा, एंड ऑन दिस सब्सटेंस वी विल बी पासिंग इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है ना. तो देखो मीनिंग अपने आप समझ में आ जाएगा. इलेक्ट्रोलिसिस, इट इज अ सॉर्ट ऑफ स्प्लिटिंग ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी. इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन. व्हाट इज डिकम्पोजिशन? जैसे पढ़ो, जैसे आप पढ़ते हो ना कंपोस्ट, एग्रीकल्चर में पढ़े हो, मैन्योर. डिकम्पोजिशन, breakdown of organic matter into simpler substances by the action of microbes in an environment of no air, no sunlight and no oxygen is known as decomposition. Carbonization process पढ़ा था हमने. उसी तरह अब यहां भी ब्रेकडाउन होने वाला है. डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेकडाउन. डेड बॉडी डिकम्पोजेस, तो यहां पे क्या होगा? कंपाउंड डिकम्पोज होगा, टूट जाएगा. किसमें? साधारण चीजों में, सिंपल थिंग्स. लेकिन कौन तोड़ रहा है उसको? इलेक्ट्रिसिटी. सम एनर्जी यू हैव टू गिव. इसी को अगर हम बोले, फॉर एग्जांपल, अगर आप सनलाइट से किसी चीज को तोड़ते हो, आप ग्रेड 9 में यही पढ़ोगे, इसे हम क्या बोलेंगे? फोटो डिकम्पोजिशन. फोटो मींस सनलाइट. थ्रू सनलाइट इफ यू डिकम्पोज, प्रोसेस इज नोन एज फोटो डिकम्पोजिशन. अच्छा, हीट करके डिकम्पोज कर सकते हैं, इसको हम बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन. वेरी गुड. And this one is known as electrical decomposition. So we will have a substance, will pass electricity and it will get broken down into simpler substances. Usually grade 10 वगैरह में हम ऐसे दिखाते हैं. अगर कोई चीज AB से बना हुआ है तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट A और B में टूट जाएगा. अगर कोई चीज AB से बना है तो वो A और B से टूट जाएगा. जैसे आप, लेकिन इसको आप तीन तरह से तोड़ सकते हैं. ब्रेक इट इन 3 different forms, either by passing heat, thermal decomposition, we're not going to study here, or by action of sunlight, we're not going to study here, photo decomposition. We're going to study electrical decomposition, also known as electrolysis. So these are the various forms of chemical changes which take place, or the chemical effects of current. आइए एक common example देखते हैं. So let's say we have an electrolytic setup now, and I have got an electrolytic tank, and first time I take a liquid which is very well known to me. This is water. अच्छा, यहाँ पे एक सवाल आता है. वाटर को लेके पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं. वाटर लेके बहुत फाइट है. सर, वाटर हमारे घर में टैप से आता है. सर, हमारे घर में इन्वर्टर है और उसमें जो बैटरी है उसमें वो लोग बोलते हैं कि आप इसमें डिस्टिल्ड वाटर डालिए. डिस्टिल्ड वाटर, टैप वाटर, सी वाटर, रेन वाटर. समझ में आ रहा है सब? ठीक है, शुरू बातचीत तुम दोनों का फिर से आते ही शुरू. अच्छा सुनो, अब ये वाटर में सवाल आता है कि इज वाटर एन इलेक्ट्रोलाइट? वाटर विल बी एन इलेक्ट्रोलाइट इफ वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, इफ वाटर कंडक्ट. डिस्टिल्ड वाटर इज नोन एज द प्योर फॉर्म ऑफ वाटर. ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है. Means if you are talking of H2O, then H2O in distilled water does not conduct electricity.
पर जैसे आपके टैप में बहुत सारे TDS रहते हैं, टोटल डिजोल्व सॉल्ट्स, एंड दीज सॉल्ट्स आर सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम। इसमें हमारे पास कैल्शियम के सॉल्ट्स रहते हैं, मैग्नीशियम के सॉल्ट्स रहते हैं, इसलिए टैप वाटर से आपको शॉक तो लगेगा। टैप वाटर विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जबरदस्त इलेक्ट्रिसिटी। देन कम्स, सर हमने ना आरओ का पानी यूज किया। अच्छा देखो, एक और, ये टॉपिक में नहीं है पर हम इंट्रोड्यूस करेंगे। एक आरओ ले लेते हैं और एक और ले लेते हैं मिनरल वाटर, ठीक है, सबको चेक कर लेते हैं। ओके, डू यू नो your RO not only filters the water, but your RO will also add various salts to the water to make the water tasty. अभी जो हम पानी पीते हैं ना, वो पानी टेस्टी है। अगर हम पानी से सॉल्ट्स निकाल देंगे ना, तो पानी विल बी वेरी ब्लैंड। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव nowadays, every relative or everywhere we go we all have ROs, but if you go to villages and all, बहुत जगह में ऐसा ट्यूबवेल रहता है। अगर आप वो पानी वगैरह पी दोगे, जैसे हम बचपन में जब if you go to कानपुर, I used to always find the water of Kanpur very light. I mean, वो प्यास नहीं बुझता है, टेस्ट नहीं है, that means उसमें सॉल्ट कंटेंट कम है। आरओ क्या करता है, पानी को प्योर करके उसमें अलग से सॉल्ट ऐड करता है। सो द कार्ट्रिज व्हिच यू पुट, सिल्वर कार्ट्रिज एंड अदर, its job is to maintain the salt, then only you will find the water tasty. तो सॉल्ट है आरओ के पानी में, है, शॉक लगेगा 100%. this is tick mark, means they are all going to conduct electricity. This fellow will conduct electricity. बाजार से आपने क्या खरीद लिया बेटा, मिनरल वाटर खरीद लिया। मिनरल वाटर कैसा चीज है, मिनरल वाटर स्पेलिंग क्या लिख दिया, तो पहला बार ऐसा स्पेलिंग लिख रहा हूं। ओके, मिनरल वाटर में भी कैसा रहता है, इट इज प्योर फॉर्म ऑफ वाटर बट इट इज ऑल्सो हैविंग मिनरल्स इन इट। इसमें भी सॉल्ट्स दिया रहता है, तो इसमें भी आपको शॉक 100% लगेगा, सवाल ही नहीं। सी बीच गए हैं आप लोग, सी में गए हैं, एक दो बूंद पानी तो मुंह में घुसा ही होगा, नमकीन होता है, 100% ये भी शॉक मारेगा आपको। सो दिस ऑल्सो कंडक्ट्स। और आते हैं, बात करते हैं अभी रेन वाटर की। तो रेन कहाँ गिरता है, रेन फॉल्स ऑन द एरिया वेयर वी स्टे, एंड यू पीपल आर biggest destroyers of the universe along with me, along with the environment. So our environment contains all gases. So if the rain is passing through that gases, the rain water is getting acidified. So if the rain water is getting acidified, so rain water also conducts electricity. That means water in any form do not go and touch electricity, because it's seldom that you are going to have distilled water or pure water. कोई भी form का water आपको तो shock मारेगा। Sir, I went to Kailash and I Kedarnath and I went to Gangotri and I got water that may be pure form, कोई adulteration, लेकिन उसमें भी salts हो जाएंगे कुछ ना कुछ, वो भी आपको shock तो मारेगा, ठीक है। So all forms of water will conduct electricity, ठीक है। So now what we are going to do, we are going to do electrolysis of water. So though we have taken water here, अच्छा, other forms of electrolytes, what did we discuss बेटा, all acids, all salt solutions, all bases. तो हम चाहते हैं कि यहाँ water behaves as a electrolyte. So we have to ensure ये अच्छी तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे। तो इस वाटर को हम क्या करेंगे, इस वाटर को हम बना देंगे एसिडिफाइड वाटर, थोड़ा सा एसिड डाल देंगे इसमें। Now we have ensured that this fellow will conduct electricity. Have you understood? Acids conduct electricity. अच्छा, another question that they may ask you, ये सब लिख के रखो। Concentrated acid, pure 100% acid will never conduct electricity. Acid electricity conduct करने के लिए आपको ये word उस दिन मैं लिखा था, solution. If you remember, I had used this word called aqueous, AQUEOUS. Aqueous होना ही पड़ेगा, means whether you are an acid, you should have water mixed with it. If you are a base also, you should have water mixed with you. And if you are a salt, you still should have water mixed to you. Means only solutions conduct electricity. Okay, that brings another question. Sir, in our kitchen, we have got a bottle or a small container in which we store salt, which we use for cooking food. होता है ना सबके घर में नमक का डब्बा। अब नमक के डब्बे में देखो, ये वाला सेटअप करते हैं। देखो ये सेटअप, suppose you have taken a battery, okay, say suppose you have taken a battery and from this battery you have connected it to an LED, and these two probes you have taken and you have put them in that नमक का कटोरा, जिसमें आपका नमक है, नमक के कटोरे में डाल दिया salt, ये LED नहीं चलेगा। Solid salt does not conduct electricity. लेकिन वहीं अगर आप पानी लेके यहां से एक स्पून नमक डाल देंगे ना, it will conduct.
always remember that it's a salt solution that conducts electricity. It's an acid solution. 100% pure acid will not conduct electricity. Okay? So we are going to do what? We are going to do electrolysis of water. So we have taken acidified water so that we have ensured that the water is a good electrolyte now. We dip here something, 2 electrodes, and these electrodes are known as carbon rods. अब carbon rod होता क्या है ये भी जानना चाहिए. Okay, these are carbon rods. Carbon rods. अच्छा, have you seen this Mortein or All Out liquidator? उसके बॉटल के अंदर एक रॉड रहता है, देखिए आप, वो कार्बन रॉड है. वो वाला रॉड डिप कर दिया यहाँ पे, और एक को हमने कनेक्ट कर दिया किसमें बेटा? प्लस में कनेक्ट कर दिया, और एक को कनेक्ट कर दिया माइनस में. So now what you are doing? You are passing electricity, and carbon rod means, now tell me, does carbon conduct electricity? Yes, in the form of graphite. ये होता है साइंस. कार्बन को हम इंश्योर करेंगे, इसको कार्बन रॉड्स की जगह आप ये भी लिख सकते हो that these are graphite rods. ग्राफाइट होना ही पड़ेगा, वरना इलेक्ट्रिसिटी जाएगा ही नहीं अंदर तक. ग्राफाइट रॉड्स. सो जैसे ऐसे ऐसे केस क्वेश्चन आपको दे देगा कोई, that electrodes of carbon was used, which form of carbon was it? तो आपको क्या लिखना चाहिए? Graphite, because graphite is going to conduct electricity. So now electricity gets inside water. ठीक है? तो इसमें हमने क्या सीखा? That a substance AB will get split into A plus B. Water में वो AB क्या है? Hydrogen and oxygen. Water H2O है. Hydrogen and oxygen combine together to form water. So जैसे इस acidified water में हम लोग क्या करेंगे? We are going to put electricity. Oxygen, ये आप नहीं समझोगे. Water will split up like this. Oxygen is a negatively charged ion. So all our oxygen O2 will start. Oxygen O2 will start bubbling out here. कहाँ bubble होगा? Positive में. ये आपको याद रखना चाहिए. Oxygen bubbling will happen on positive, and hydrogen bubbling will happen on the negative one. So what did you do? You want to know the reaction? It's 2H2O gets splits into H2 plus O2. 2H2 plus O2. So AB got split into A plus B. This is one format of chemical effect of electric current. Sir, we started with water. How can you start with water? Water is not an electrolyte. Yeah, sir. To ensure that water is electrolyte, we added acid in water and we made it acidified water. After we made acidified water, we introduced it into an electrolytic tank. We have our electrolyte. Our electrodes this time are made up of carbon in the form of graphite. And when electricity was passed through, remember one thing, oxygen always starts getting bubbled out from the positive electrode, and hydrogen will bubble out from the negative electrode. ठीक है? ये हायर क्लासेस में आप देखोगे ऑक्सीजन हमेशा नेगेटिव आयन फॉर्म करता है. So if somebody tells you what are the uses or what are the impacts or what are the various applications of chemical effect of current? Electrolysis. In electrolysis, what are we trying to do? We are trying to decompose. हम किसी चीज को decompose करते हैं, और जब decompose करते हैं तो substance gets broken down into simpler substances, or we say instead of writing similar substances, you can also use the word called constituents. जिससे बना था वही सब अलग अलग हो जाएगा. और कैसे, उसका एक एग्जांपल है water. Tell me, anyone has any question out here? Have you understood? Right? Is it a chemical change? Yes. You started with water और आपने क्या बना दिया? हाइड्रोजन ऑक्सीजन. अब देखो, न्यू सब्सटेंस न्यू प्रॉपर्टीज क्यों बोलते हैं? Look at hydrogen. Is hydrogen an explosive or a combustible? Yes. Hydrogen is भस्मासुर. आग लग गया तो एकदम फट के बॉम्ब की तरह फटेगा. Does oxygen? Yes, oxygen supports combustion. जलता नहीं है. मतलब ये दोनों भस्मासुर प्रकृति की हैं. Both of them are fire friendly. But look at water. We use it to extinguish fire. बात समझ में आ रहा है? New substances with new properties. पहले कैसा था? सर हम तो आग को पसंद ही नहीं करते. जब इसको स्प्लिट कर दिया, हम आग को बहुत पसंद करते हैं. अब उल्टा भी देख सकते हो आप. Hydrogen as a cylinder, as a gas, is highly explosive. Oxygen is a supporter of combustion. Both combine to form water, and water is something which is a
फायर एक्सटिंग्विशर। देखा कंप्लीटली। भक्त प्रहलाद का स्टोरी अगर आपने पढ़ा होगा तो बिल्कुल वैसा है, राक्षसों के कुल में जन्म लिया लेकिन फिर विष्णु की उपासना। ठीक है, अंडरस्टैंड। ले ले, पीछे ही है बॉटल, बॉटल ढूंढ रहा है, वही तो है। अच्छा पी लिया, ठीक है, आगे चले। अभी हमें सब यही सब पढ़ना है, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रो केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट। सो इलेक्ट्रोलिसिस इज वन। क्लियर हुआ? एनी क्वेश्चन, एनीथिंग दैट समबडी वुड लाइक टू नो? ओके, चलिए अब एक और एप्लीकेशन देखते हैं। इस एप्लीकेशन को हम बोलते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इसका तो एक्सटेंसिव यूज है, लड़कियां तो ये भूल ही नहीं सकते हो। इलेक्ट्रोप्लेटेड ज्वेलरीज दैट यू यूज। क्या तुम्हारे ये रिंग सोने की है? नहीं नहीं, ये इमिटेशन गोल्ड है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग? देखो, sometimes let's say I have you seen spoons in 5-star hotels and all? Their shine is very beautiful, okay, बहुत अच्छा शाइन रहता है उसमें। तो अरे इतना ब्लू होने का क्या शौक। तो मान लीजिए ये हमारा एक कटलरी है। Now this cutlery can be, we say, silver cutlery or silver utensil. ये एक्चुअली सिल्वर नहीं होता है, ये इलेक्ट्रोप्लेटेड रहता है। इलेक्ट्रोप्लेटेड का मतलब है कि ये this will be made up of some base material, and on that base material there will be a fine layer, another layer of metal will be deposited on this. What you see is this particular layer, और ये देख के ही तुम हो जाते हो खुश कि यार ये क्या शाइन कर रहा है। This layer which we give, this layer can be given one way is galvanization, molten में डुबो के उठा दो, but electroplating is widely used. एक तो क्या होता है, electroplating में uniform distribution होगा। Second is this layer can be made thick as per your requirement. Okay, now let us see some applications before we understand what is electroplating. Cutleries and crockeries. Cutleries and crockeries are supposed to give you nice shine for royal look. You're not going to spend on silver fork, but the fork will be such that it will be electroplated with some alloys, special graded materials, which will retain their shine, not corrode. Another thing is this should not corrode. So the look remains very premium and rich. So we see it in what segment? Utensils. Second comes ornaments, electroplated. जैसे आपका फंक्शन है, उसमें आपको माँ दुर्गा बनना है, आज पूरा गोल्ड पहन के, आपको थोड़ी गोल्ड पहना के भेजेंगे। So you get electroplated, gold plated. Now gold plating में कैसा रहता है? There will be a small layer of gold, cheap होगा, and for one day's wear it is fine. लेकिन उसको पहन के आप नहाना वाना मत ज्यादा, once the layer goes off, corrosion होना शुरू हो जाएगा, right? But again in electroplated gold also we get some good quality. Let's say अभी एक there's one brand, girls you might be knowing, Ziba रहता है जैसे, तो उसके जो bangles and ये रहता है वो लिखा रहेगा oxidized silver और anodized silver. Anodized means you are putting more layer of silver on that. तो देखने में zirconium जिसको बोलते हैं, white gold, देखने में बड़ा सुंदर लगता है। This is one jewelry. Then comes taps and fittings. Have you seen the taps of 5-star hotels and Kohler, Jaguar? So all these taps are made up of base material. They will always be electroplated with a element whose name is chromium. Chromium will give a very rich look, and ये बड़ा costly होता है। जब आप दुकान में नया टैप खरीदने जाएंगे and you see in Amazon, you'll see wash basin taps available from 300 rupees to 2,300, 3,000 rupees. What is the difference? 2,000 rupees will also shine and 200 rupees will shine, but 200 rupees after 1 month of use, because the water that is flowing through it is, our water is not good, so it will start corroding it. The chromium layer is very thin, almost like the silver foil over a kalakand. जितना रहता है उतना ये उड़ जाएगा और फिर आपका टैप येलो येलो हो जाएगा। So if you want it to look rich and premium, then you have to go for the costly brands, and where the costly brands invest, they invest on this chromium. Car, the logo of a car. A car company, whether it makes a cheap car or a costly car, will never compromise on its logo, because the logo is the brand, the इज्जत of the car. गाड़ी पूरा बर्बाद हो जाए, उसका लोगो जो है ना, वो Hyundai और Honda, वो एकदम शाइन करते ही रहता है। इनफैक्ट मर्सिडीज के लोगोस तो चोरी कर लेते हैं लोग खोल के, इतना महंगा होता है, बट दे आर वेरी हेवी। और पीछे जो लिखा रहता है ना VXI एंड CRDI, दीज आर ऑल क्रोम प्लेटेड। तो इस इंडस्ट्री की ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज अ वेरी वेरी रिच इंडस्ट्री। देन वी आल्सो नीड certain things. Why do we chrome plate it? One is corrosion free होना चाहिए,
So there are some applications like, say, suppose you have got some screws. Okay, these are called precision machining. Precision machining. इनकी रिक्वायरमेंट कहाँ होती है? सपोज यू आर मेकिंग वेरी हाई एंड मशीनरी स्क्रूज, बाइसाइकिल में फिट नहीं करोगे, कहाँ फिट करोगे? आपके बॉडी में जब फ्रैक्चर हो जाएगा ना, तो बोन्स को ज्वाइन करने के लिए आप ये स्क्रूज यूज करोगे. यू कैन नॉट हैव इम्प्योर थिंग्स इन योर बॉडी, बॉडी विल नॉट एक्सेप्ट इट. और से यू आर यूजिंग इट फॉर हाई ग्रेड मेडिकल एप्लीकेशन के डिवाइसेस बना रहे हो, और स्पेस एप्लीकेशंस कर रहे हैं आप. स्पेस एप्लीकेशंस, हर जगह तो आप गोल्ड के स्क्रूज नहीं बना सकते. So what you will go for? You will go for electroplated screws, and then the process becomes very costly. Electroplating is a costly process. अब देखना आप, जैसे मेले में कृष्ण के मूर्तियां बिकती है ना, ऐसे शाइनिंग शाइनिंग, वो सब इलेक्ट्रोप्लेटेड नहीं है. वो लोहे में ऐसे बना के गरम जिंक में डिप करके निकाल देते हैं, लो जी लल्ला जी चमक गए ऐसे करके. वो इलेक्ट्रोप्लेटेड नहीं है. इलेक्ट्रोप्लेटेड वाले रहते हैं आपके प्रीमियम स्क्रूज. मदरबोर्ड के स्क्रूज देखिए, कभी भी रस्ट नहीं करेगा. दे आर ऑल इलेक्ट्रोप्लेटेड. सो वी शुड नाउ अंडरस्टैंड हाउ इलेक्ट्रोप्लेटिंग हैपेंस. बिफोर दैट लेट्स आल्सो नाउ गेट टू नो व्हाट इज द डेफिनेशन. अच्छा, नेक्स्ट इज ऑटोमोबाइल. सो इस इलेक्ट्रोप्लेटिंग की यूज कहां कहां होती है? कटलरी, नेक्स्ट ज्वेलरी, नेक्स्ट मशीनरी. ओके, मशीनरी में कहां कहां यूज होता है? ऑटो, मेडिकल, ठीक है, प्रिसिशन. प्रिसिशन एंड प्रिसिशन यूजेस माइट बी इन स्पेस, एरो. एरो और स्पेस में इनके यूजेस होते हैं. ओके, ऑटोमोबाइल में तो भर भर के यूज है. There are some shaving blades, children, which like say Gillette or 7 O'Clock makes. The blade is this big as a structure. What part of the blade we use? Only the edge part to shave off. बाकी ब्लेड में हमें इतना हाई क्वालिटी नहीं चाहिए, एज अच्छा होना चाहिए. इसलिए आप देखना लिखा रहेगा नया 7 O'Clock एज टेक. एज टेक मींस उसके एज में इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके रखा है, so that you get a better graded thing. Then ऑटोमोबाइल में एक्सटेंसिव यूजेज है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का. So cutlery, crockery, jewelry, machinery, and the uses for two things. One is look. The look should be very premium. You should get a very premium look from it, and a rich look. हाई-फाई रेस्टोरेंट में जाके अगर आपको ऐसा कद्दू वाला चम्मच दे दिया ना, जो रास्ते में गोलगप्पे वाले के पास रहता है, देखियो डल वाला, गंदा रहता है. अच्छा इलेक्ट्रोप्लेटेड रहेगा कटलरीज तो एकदम बढ़िया लगेगा. एंड अनदर इज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोशन, लॉन्गर लाइफ. यही दो रीजन है. अब आप देखो, अब आप माइंड मैप बना के सोचो दैट व्हाई आर टैप्स इलेक्ट्रोप्लेटेड विद क्रोमियम. द टैप शुड गिव मी अ रिच लुक, है ना. रिच लुक मतलब समझते हैं ना, थोड़ा शाही. आपका बाथरूम थोड़ा शाही दिखना चाहिए और कोरोशन रेजिस्टेंट होना चाहिए. व्हाई शुड प्रिसिशन मशीनरी में कोरोशन रेजिस्टेंट, मेडिकल में भी कोरोशन रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड. ऑटो एंसिलरीज में आपको लुक चाहिए, corrosion resistance चाहिए. and corrosion means sometimes you also are looking for something called hardness. जितना hard होगा उतना. तो अभी हम, so let's now define what is electroplating. The process by which, तो और better करते हैं, the chemical process by which, देखो अब फिगर को देखो, a desired layer of metal, a desired layer of metal is deposited over a substance by the application of chemical effect of electric current is called electroplating. Is called electroplating. The chemical process by which a desired layer of material, मेरा मनपसंद material, is deposited over a given आर्यश. आर्यश के ऊपर क्या लगा देंगे हम? क्रोमियम लगा देंगे. desired metal over a given substance. कैसे? By using chemical effect of electric current is called electroplating. और ये लिख लीजिए,
what is the necessity of electroplating? Electroplating is used for rich and premium look. ये भी लिख लीजिए, अगर लिख लिया तो ठीक है, rich and premium look and to avoid corrosion. कहाँ देखा जाता है बच्चों? कटलरी, ज्वेलरी, मशीनरी। मशीनरी में हम 3 विभाग में ज्यादा देखते हैं, ऑटो में एक्सटेंसिव यूजेस है, मेडिकल में है, और प्रिसिशन इज व्हेनेवर यू आर डूइंग फॉर एरो एंड स्पेस ग्रेड, वहां करोड़ नहीं हो सकता है। इनफैक्ट चिल्ड्रन, वेदर यू नो और नो, एरो में द क्वालिटी टेस्टिंग इज मोस्ट स्ट्रिक्ट बिकॉज यू आर ऑल इन एयरबोर्न, वहां पे गड़बड़ी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। So aero grade material, that's why they say in this two-wheeler we are using screws which are aero grade. Aero grade मतलब एविएशन इंडस्ट्री में जो ग्रेड आप यूज करेंगे उसको आप यूज कर रहे हो, तो आपको उसमें कैसा रहेगा, लॉन्गिटिविटी बहुत ज्यादा है। Ritisha Rashad is requesting meeting questions. What do you want, Ritisha? There is something that has popped up. Is Ritisha is requesting meeting questions. Enable. First of all, because your camera is switched off and suddenly pop-up came. Why is the camera switched off? Today you don't want to show face. Okay. No, sir. Next thing the camera's on. Oh, but I don't know. It doesn't make me see your face, so camera is off. Anyways, have you understood? Now let's see the process of electroplating. Ready, बच्चों? Electroplating आपने समझा? किसी भी दिए हुए वस्तु के ऊपर अपने मनचाही धातु का लेयर बिठाना, मेटल का लेयर बिठाना, किसको? रासायनिक इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के जरिए, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सर ये आप क्यों करते हैं, आपको इसकी क्यों ख्वाहिश जागी? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे सामान शाही दिखे, महंगे दिखे, और ये सालों साल बरकरार रहे। इन्हें किस किस इंडस्ट्री में देखा जाता है? कटलरीज में देखा जाता है, ज्वेलरी में देखा जाता है, और औद्योगिकरण में देखा जाता है, जहां हम वाहन विभाग में इस्तेमाल करते हैं और स्वास्थ्य विभाग में इस्तेमाल करते हैं, और सूक्ष्म प्रेसिशन इंजीनियरिंग में भी यूज करते हैं। हिंदी सीखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग का सेटअप देखते हैं। पहले सेटअप देखते हैं बच्चों। ओके, लेट्स सी द सेटअप। सो एवरी प्रोसेस इज लाइक एन इलेक्ट्रोलिसिस वाला है, वही इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक वाला। तो यहाँ पे हम कैसा करेंगे, देखिए। सो वी विल फर्स्ट टेक आवर इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। तो पहले तो बनाओ अपना टैंक। ये है मेरा इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, ठीक है, समझ में आया? दिस इज माय ग्लास इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। ये मेरा इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, ठीक है। आइए अब रुकिए, अब वो इलेक्ट्रोलाइट मत बनाइए, उस इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर एक कथन है, लिख लिया तो कोई बात नहीं, रखिए। नाउ व्हाट डू वी वांट टू इलेक्ट्रोप्लेट? सर इस बार हम इलेक्ट्रोप्लेट करना चाहेंगे, हमारे घर में एक कॉपर का स्पून है, तो उस कॉपर के स्पून को हम सिल्वर से इलेक्ट्रोप्लेट करेंगे, या ठीक है। और मान लीजिए वी हैव गॉट अ आयरन स्पून एंड वी वांट टू इलेक्ट्रोप्लेट इट विथ व्हाट? सिल्वर। तो हमारे पास एक आयरन का स्पून है, सो दिस इज माय आयरन स्पून। 1 minute. Okay, so let me take my, say this is my iron spoon, ठीक है, गंदा हुआ है, इसको अच्छा करते हैं, नहीं तो डायग्राम ही देखने में खराब लगता है। और say this is my iron ladle, ये मेरा आयरन स्पून है। इसको हम किससे इलेक्ट्रोप्लेट करेंगे? इसको हम सिल्वर से इलेक्ट्रोप्लेट करेंगे। तो इसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, देखिए। यू आर गोइंग टू इलेक्ट्रोप्लेट इट विथ सिल्वर, सो ऑब्वियसली यू नीड अ सिल्वर इलेक्ट्रोड। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वी विल गेट अ सिल्वर इलेक्ट्रोड। सो लेट अस टेक वन सिल्वर इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे हमने एक सिल्वर इलेक्ट्रोड बिठा दिया, ठीक है, सिल्वर इलेक्ट्रोड। नाउ अन्विता, व्हाई आई सेड इलेक्ट्रोलाइट पे थोड़ा रुकिएगा, इसमें कैच है। द मटेरियल दैट यू वांट टू डिपॉजिट, आप क्या डिपॉजिट करना चाहते हैं? इस एग्जांपल में सिल्वर डिपॉजिट करना चाहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कॉपर वाला तो देखने में, आयरन वाला देखने में भद्दा सा लगेगा, आयरन के ऊपर हम सिल्वर डालेंगे तो रिच लुक आएगा ना। जिसको आप डालना चाहते हो, सो रिमेंबर योर इलेक्ट्रोलाइट शुड बी अ सॉल्ट ऑफ द मेटल दैट यू विश टू डिपॉजिट। आई विल राइट एवरीथिंग। ऐसा कुछ भी इलेक्ट्रोलाइट लेने से नहीं चलेगा। Now your electrolyte has to be a salt of silver. So what is a salt of silver? Silver nitrate.
सो यहाँ पे लिखते हैं कुछ कुछ, आइए लेट्स राइट. सो व्हाट डू वी राइट? दिस इज प्योर सिल्वर. This is my iron spoon. इसको इलेक्ट्रोप्लेट करना है. So I'm writing here to be electroplated. To be electroplated with silver. Right? So pure silver means this is my desired material. Desired metal, and this is my electrolyte. Bachcha, your electrolyte has to be salt of desired metal. So in this case, since you are using silver, so we can use silver nitrate. दूसरा कुछ भी आप इलेक्ट्रोलाइट ले लोगे तो काम नहीं करेगा. सिल्वर नाइट्रेट. अच्छा, अगर ये कॉपर होता, कॉपर सल्फेट लेंगे तो भी चलेगा. निकल है, निकल का सल्फेट लेंगे तो भी चलेगा. जो मेटल आप चढ़ाना चाहते हो उसका सॉल्ट होना चाहिए. ठीक है. अब वायरिंग भी इंपॉर्टेंट है. वायरिंग कैसा इंपॉर्टेंट है? अच्छा, याद रखिए, ऑल द मेटल्स, यहां से व्हाट इज द प्रिंसिपल, यहां से सिल्वर जाके इसके ऊपर बैठना पड़ेगा. अब सिल्वर डायरेक्टली नहीं जाता है. जैसे यहां से क्या होगा, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट लॉजिक आल्सो. फ्रॉम हियर silver ions will get into the electrolyte, and these silver ions will go and deposit. And for your memory, remember, metal, when it forms metal ions, any metal जब metal ions फॉर्म करता है तो वो पॉजिटिव वाले आयंस होते हैं. यानी कैसे आयंस होंगे? कैटायंस होंगे. अब आप बोलो, कोई पॉजिटिव चीज किस तरफ जाना चाहेगा? पॉजिटिव किस तरफ अट्रैक्ट होगा? नेगेटिव की तरफ. हम चाहते हैं कि हमारे सिल्वर आयंस कैसे हैं बेटा? द सिल्वर आयंस विल बी पॉजिटिव. और ये सिल्वर आयंस यहाँ देखो देखो देखो. लिखना मत करो यार, लिखना बंद करो. दिस क्लास इज गेटिंग वीडियोड. प्लीज डोंट स्पेंड योर टाइम राइटिंग हियर. डू यू नो, इफ आई टेल यू ये रावण निकला यहाँ से, तुम रावण लिखोगे? आता है नहीं ना. मजा लो ना साइंस का. ये बुक में भी है. ये वीडियो देखो तब नोट्स बनाओ. आप यहाँ लिखते ही जा रहे हो सर निकाल के. That's why your brains, that's why जब आप ओलंपियाड क्वेश्चंस आते हैं आप लोग नहीं कर पाए, बिकॉज आपकी सोच मर गई है. You all are only writers. अब मैं बोलूं that silver and metal electrolyte should be the sister of Surpanakha. आप लिख लो वही. सोच कहाँ है? क्वेश्चनिंग नहीं होता है आप लोगों से. You know why that questioning not happens? एक बार आप माइंड नीचे करके लिखता है. ऐसे साइंस नहीं पढ़ते बेटा. साइंस पढ़ना है तो हमें क्वेश्चन पूछो. क्यों सर, क्यों आपने इसी का सॉल्ट लिया? किसी ने ये सवाल उठाया? नहीं. ये इलेक्ट्रोप्लेट कैसे हो रहा है, पहले चीज को तो समझो. सिल्वर हैज टू गो एंड गेट डिपॉजिटेड. ये मैजिक दैट इज गोइंग टू हैपन. तो सिल्वर यहां से चल के तो नहीं जाएगा. सिल्वर के आयंस बनेंगे which will form in this solution, and those silver ions have to go there. Why I am writing this? Now we have to make, इन्हें करंट देना पड़ेगा. किसको पॉजिटिव बनाओगे, किसको नेगेटिव बनाओगे? जैसे वहां पे आपने सीखा था ऑक्सीजन गोज इन द पॉजिटिव. यहां कैसे याद आएगा? मेटल, when it forms metal ions, they will always be positive. Always metal के ions हमेशा पॉजिटिव होते हैं. हमारे यहाँ मेटल कौन है? सिल्वर. सिल्वर के आयंस बन गए, पॉजिटिव हैं. इनको ले जाना है इसके पास. तो सिल्वर अपने आप तो जाएगा नहीं, उसको अट्रैक्ट करा के ले जाना है. एक पॉजिटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? नेगेटिव. तो इसका मतलब है जिसको आप इलेक्ट्रोप्लेट करने वाले हो, जिसको आप इलेक्ट्रोप्लेट करने वाले हो, इसको आप नेगेटिव टर्मिनल में कनेक्ट करोगे. तभी तो आपको फिर क्या होगा पता है? आप ये मन नहीं लगा रहे हो ना, फिर सडनली यू विल सेंड अ मैसेज टू मी, सर आई डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस. कैसे समझोगे? यहां आते हो समझने के लिए, यहां लिखने के लिए. लिखने का बुक्स है. और
50 वीडियोस मिलेंगे आपको यूट्यूब में, इससे भी बेहतर एनिमेशन से समझाने के लिए, लेकिन आपको एक बार किसी से समझ तो लो। हियर स्पेंड योर टाइम टू अंडरस्टैंड। दिस इज मेड व्हाट? दिस इज मेड नेगेटिव। इमेजिन दिस इज मिठाई का दुकान और ये भुक्कड़ है। अब भुक्कड़ किधर जाएगा? मिठाई की दुकान की तरफ जाएगा। सो ऑल द पॉजिटिव, अब क्या होता है, और इसमें हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव में देंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपल करेगा, जा सिल्वर जा, और सिल्वर को ये क्या बोलेगा? आजा सिल्वर, आजा सिल्वर, आजा सिल्वर। अब धीरे 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 ये कोट होता जाएगा और ये क्या हो जाएगा? पतला होना शुरू होगा। ये यूज हो रहा है ना, ये सिल्वर निकल कहां से रहा है? इसी से तो निकल रहा है। इलेक्ट्रोलाइट पूरे प्रोसेस में यूज ही नहीं होता है, ये ग्रेड 10 में आप फिर पढ़ेंगे, बट इन ग्रेड 10 देयर विल बी लॉट ऑफ रिएक्शंस, अभी लिखने से आप समझ नहीं पाओगे। सो व्हाट इज द मैकेनिज्म आउट हियर? यहां हम क्या करते हैं, नंबर 1 आपको इलेक्ट्रोलाइट को चूज करना पड़ेगा। सो इलेक्ट्रोलाइट कैसा रहता है? इलेक्ट्रोलाइट इज सॉल्ट ऑफ मेटल टू बी डिपॉजिटेड, ये याद रखिए। अच्छा, नंबर 2, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? आपको 1 मार्क पूछ देगा। ऑब्जेक्ट शुड ऑलवेज बी नेगेटिव, यानी कि ऑब्जेक्ट शुड बी कैथोड। अच्छा, नंबर 3, प्योर मेटल क्या रहेगा जो आप डिपॉजिट करना चाहते हो? प्योर मेटल हमारा एनोड रहेगा। क्लियर आया? अब क्या होगा? अब प्रोसेस कुछ ऐसा है, प्योर मेटल जो हमारा है, यहां से निकलेंगे मेटल आयंस, और ये मेटल आयंस क्या रहते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो प्योर मेटल पतला होना शुरू होगा, ठीक है, और ये मेटल आयंस जाके कहां बैठेंगे? इलेक्ट्रोलाइट में जाएंगे पहले, एंड फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट दे विल गो टू योर ऑब्जेक्ट। दिस इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यू शुड नॉट हैव एनी डायलेमा, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन पूछ देगा टेस्ट में, ड्रॉ ए नीट लेवल डायग्राम एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो आप कैसे लिखोगे? पहले आप डायग्राम ड्रॉ करो और आप दिखाओ कि वी आर ट्राइंग टू इलेक्ट्रोप्लेट एन आयरन स्पून विथ सिल्वर और विथ कैन बी कॉपर आल्सो। रिमेंबर 3 things. Object to be electroplated is always made negative because it has to act as the bait, जिसको देख के मछलियां आएंगी। मछलियां पॉजिटिव है, वो निगेटिव बेट को देख के खाने आएगा। And the electrolyte that you should bring should be a salt of the metal that you wish to deposit. If you want to deposit gold, your electrolyte should be a salt of gold. If you want to deposit silver, your electrolyte should be a salt of silver. If you want to deposit copper, your electrolyte should be a salt of copper. Once this has been done, the pure metal is connected to the positive. So pure metal cathode, CN, Andhra Pradesh. तो ये बन गया आपका कैथोड, ये बन गया आपका एनोड। Once electricity is passed, metal ions, that is silver ions, get dissolved into the electrolyte, and from the electrolyte they are attracted into the negative electrode. And negative electrode यहाँ पे क्या है? अपना चम्मच। Object to be electroplated is the negative electrode. Metal to be deposited is made the positive electrode. And then the ion starts traveling to the object, and the object gets the coating of this metal. When you feel that sufficient thickness that you want, you have achieved it, stop the process. तो प्रोसेस कैसा रहता है? एक चम्मच नहीं लगाएगा, बहुत सारे चम्मच को एक साथ डुबो देगा, ऐसे बैच में चुप। 1 घंटा बाद डुबोया क्या? काले काले चम्मच आयरन वाले। 1 घंटा बाद जैसे निकालते हैं, वाओ चमकीले चम्मच। अगेन नए नए, एक और नया सेट, बैच बाय बैच प्रोडक्शन होते रहता है। क्योंकि यहाँ पे भी ये जो सॉल्यूशन है ना, देखो ये सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। एक्चुअली रिएक्शन अगर आपको थोड़ा, दिस इज अ थिंग व्हिच विल नॉट बी आस्क्ड इन योर ग्रेड 8, बट यू शुड अंडरस्टैंड, इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ इसको नहीं जा रहा है, इसको नहीं जा रहा है, इसको भी इलेक्ट्रिसिटी लग रहा है, ये भी तो इलेक्ट्रोलाइट है। सबसे पहले ये सिल्वर नाइट्रेट स्प्लिट हो जाता है, Ag प्लस NO3 माइनस, सबसे पहले यहां फटेगा, फट गया। और फिर ये जो आपका इलेक्ट्रोड है, यहां से क्या होगा? सिल्वर प्लस आयंस विल स्टार्ट फ्लोइंग,
ठीक है, दिस you'll study in grade 10 that ये जो मेरा चम्मच है, आपको भी क्या लग रहा है ये सिल्वर आके यहाँ जमा होता है ना? वो नहीं होता है, ये आप ग्रेड 10 में सीखोगे। ये वाला सिल्वर आके जमा होता है और जितने खर्चे हो गए उसको ये भरपूर करता है। आर्यस ने सुबह मुझे 10 रुपीज देके बोला, सर रत्नदीप से मेरे लिए एक पेन ले आना। मैंने उसके 10 रुपीज को यहां रखा, मेरे पॉकेट के यहां भी 10 रुपीज है। आर्यस को क्या मतलब, उसको पेन से मतलब है। मैं तो ये 10 रुपीज से खर्च करके पेन ले आया। विल यू एवर आस्क मी, सर पेन लाए, ये लो पेन। विल यू आस्क मी अ क्वेश्चन, मेरे नोट से खरीदा था ना, ये कोई पूछता है क्या? नहीं। और ये वाला नोट मैंने क्या किया, वापस यहां रख दिया। कल फिर अन्विता ने पैसे दिए, मैं यहां लेता हूं और यहां से खर्चा करता हूं। इसीलिए दिस सॉल्ट शुड बी ऑफ द सेम मेटल, क्योंकि ये वाला सिल्वर नहीं जाता है। आपके आयरन स्पून में इलेक्ट्रोलाइट का सिल्वर आयन जाता है। सो in grade 10 you will read it like this: when electricity is first passed, if you want to enjoy, the electrolyte will first dissociate into its ions. So in the pool we will have silver and nitrates. ठीक है, अब ये नाइट्रेट्स का भी मजेदार कहानी है। देखो आपको ये पूल में क्या मिला, ये नाइट्रेट वाला आयन मिलेगा, सॉरी नाइट्रेट वाला आयन मिलेगा और साथ में सिल्वर मिलेगा। This silver is going to happily get deposited into this iron spoon. एंड देन नए से जो सिल्वर यहां से निकल रहा है ये फिर नाइट्रेट से शादी करता जाएगा, यहां से डिवोर्स होता जाएगा, यहां से शादी होता जाएगा और आपका AgNO3 बरकरार रहेगा। सो एज एन आउटसाइडर अगर ये बेस्ट होता है जब आप कॉपर सल्फेट लेते हो, कॉपर सल्फेट इज ब्लू इन कलर, आपको ये ब्लू कलर कभी भी चेंज नहीं आएगा, लेकिन एक्चुअली अंदर चेंज हो रहा है। जैसे ही एक डिवोर्स होता है एक शादी हो जाता है, एक डिवोर्स होता है एक शादी हो जाता है। समझ में आ रहा है आपको? So in this process we say the electrolyte is never used up in an electroplating process. What will, मेरा यहाँ पे 10 रुपया तो रहेगा ही, आर्यस का 10 रुपया यहाँ घुस गया, कल अन्विता वाला यहाँ घुसेगा, मेरा 10 रुपये से मैं क्यों उसको पेन ला के दूं, इसका पेन इसके पैसे से आएगा। एंड दिस विल बिकम थिनर एंड थिनर एंड थिनर। तो ये जो आयन है ना, जब इनिशियली बेटा स्प्लिट होता है, व्हेन इनिशियली द स्प्लिटिंग हैपेंस, ये NO3, तो आप पूछोगे सर NO3 का क्या काम है, ये तो किसी के पास नहीं गया। इसलिए हायर केमिस्ट्री में इस आयन का नाम होता है, इसको हम ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पेक्टेटर आयन। ये बैठ बैठ के तमाशा देखता है, इसका नाम ही है स्पेक्टेटर आयन। ये कुछ नहीं करेगा। घर में कभी कभी होता है ना, आप भाई बहन में लड़ाई होते रहता है और फिर मम्मी घुस के दोनों को डांटते रहती है और घर के जो पापा रहते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लड़ो यार 2 दिन बाद। सो ही इज द स्पेक्टेटर, ये स्पेक्टेटर है। ये फिर कंबाइन होता जाएगा। हैव यू अंडरस्टूड इलेक्ट्रोप्लेटिंग? इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज अ प्रोसेस इन विच अ डिजायर्ड लेयर, a layer of a desired metal is coated over another metal using chemical effects of current. The object to be coated is made negative and the metal which you want to coat, that metal is introduced as a positive electrode. The electrolyte is always a salt of the metal that is to be coated, and then electricity is passed. On passing electricity, what happens? आपके grade 8 level में ऐसे ही लिखेगा, metal ions, silver ions from anode get deposited on the object. Grade 10 में क्या पढ़ेंगे? When electricity is passed, the electrolyte first splits up to form silver ion and nitrate ion. Those silver ions immediately start traveling to the object, and this metal, यहाँ पे आप oxidation reduction भी पढ़ोगे, this metal will start losing silver ions. Those silver ions will come and tell, ए नाइट्रेट का डिवोर्स हो गया, फिर से शादी कर लो नाइट्रेट के साथ। तो सिल्वर नाइट्रेट बरकरार रहेगा और ये पतला होता जाएगा। Any questions you have? I can now answer. There is nothing more in electroplating to teach you. हाँ हाँ, मेटल नहीं होगा तो ये करंट कहाँ से पकड़ेगा? प्लास्टिक पे थोड़ी इलेक्ट्रोप्लेटिंग होगा। तुम वही पूछ रहे हो, वो लिपस्टिक लगाने के लिए ह्यूमन बीइंग के लिप्स ही क्यों होने पड़ेंगे? प्लास्टिक के डॉल पे लिपस्टिक लगाओगे क्या? नहीं ना।
वो ऐसा ही है, और क्या बोलूं। प्लास्टिक इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कंडक्ट करता है? ये पूरा पूरा कहानी तो हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी लेके, प्लास्टिक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। कैसे आएगा? तुम तो पूरा छापा, यू आर ट्राइंग टू से सर भीम कभी प्रकट नहीं होगा रामायण में, कैसे होगा बेटा? दो अलग अलग कहानियां हैं। हमने तो पहले ही पढ़ा, ये चैप्टर क्या है, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट। यहां हम क्या पढ़ते हैं? यहां हम करंट के केमिकल इफेक्ट ऑन एन इलेक्ट्रोलाइट पढ़ते हैं। और अगर आपने कोई सॉलिड लाया इस पूरे स्टोरी में, दैट सॉलिड हैज टू बी ए कंडक्टर ना बेटा, वरना करंट का तो कोई रोल ही नहीं है। प्लास्टिक इज एन इंसुलेटर। भीम का रामायण में कोई काम नहीं है। सर रावण को मार देता, पर के काम नहीं है ना सर। यहाँ उसके भाई हनुमान का सब काम है। वो तो जानते हो ना, भीम और हनुमान भाई है, ये नहीं पता? दोनों पवन पुत्र है। माइथोलॉजी में बहुत कमजोर हो तुम लोग। क्या ये क्लियर हुआ? आज इससे आगे पढ़ाने से और एक ही चीज रह जाएगा इसके बाद हमारा, रिफाइनिंग ऑफ metals. There is one more application we use is electrochemical effect of current is used in also refining as well as production. Production आप grade 10 में सीखोगे, उसका use नहीं हमारा। Like some metals are produced from their ores and minerals to electrochemical effect of current, वो हम आगे पढ़ेंगे। पर हम इसके बाद एक और प्रोसेस पढ़ेंगे, रिफाइनिंग। रिफाइनिंग भी बिल्कुल सेम प्रोसेस है। प्योर वाले को इस साइड रखेंगे, इम्प्योर को इस साइड रखेंगे, और फिर प्योर वाला और प्योर होता जाएगा, इम्प्योर गणेश मोटा से पतला होता जाएगा, चूहा मोटा होता जाएगा, बस वही प्रोसेस है। पर ये अगले क्लास में। हैव यू अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्लास वी आर अगेन गोइंग बैक टू factorization, and the last part, that is middle term splitting. We'll spend a whole day, and that day we will do grade 9 problems also. Are you ready? grade 9 problems करने के लिए हम grade 9 problems भी करेंगे। ठीक है, आज का रंगारंग कार्यक्रम यहाँ समाप्त होता है।